तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बर्मिंघम में खेले जा रहे दौलत-ए-मुश्तरिका खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर निजामाबाद की बॉक्सर निखत जरीन को मुबारकबाद पेश की है। बॉक्सिंग के फाइनल में जीत हासिल करने वाली निखत जरीन की कामयाबी पर केसीआर ने मसरत का इजहार किया और अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि वो इसी तरह अपनी जीत का सिलसिला जारी रखे। केसीआर ने कहा कि निखत जरीन की जीत ने एक बार फिर आलमी सतह पर तेलंगाना के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। सीएम ने इस बात का भी इरादा किया है कि रियासती हुकूमत रियासत के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने निखत जरीन से फोन पर बात की है और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि गोल्ड मेडल जीतकर निखत जरीन ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत व वजीर खजाना हरीश राव ने नीति आयोग पर नाकामियों को छुपाने और गुमराहकुन बयान देने का इल्जाम आयद किया है। वाज़ेह है कि नीति आयोग के इतवार के रोज होने वाले इजलास का वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने बाइकआउट किया है। हरीश राव ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत के जरिए उनकी सिफारिशात पर अमल आवारी को यकीनी बनाने में नाकामी को नीति आयोग छुपाता है और उन्होंने नीति आयोग पर सिफारिशात के खिलाफ फंड्स की तकसीम में बीजेपी हुकूमत की गलतियों पर पर्दा डालने और हक़ाइक़ को मस्क करने का इल्जाम भी लगाया। हरीश राव ने कहा कि नीति आयोग मरकज की जानिब से रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी के बावजूद खामोश तमाशाई बना हुआ है। हरीश राव ने कहा कि नीति आयोग एक खुद मुख्तार इदारा है, ताहम इसके बयानात में झूठे दावे होते हैं और आधी सच्चाई होती है। हाँ मैडम देखिए, ये हमारा हाल है। ये 2020 से लेके आज तक हम परेशान हैं। अभी जितनों ने जो है ना यहाँ पे अपनी अपनी दुख का इजहार किया था, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇది ఇల్లు పోలీస్ వాళ్ళు జహాంగీర్ భాయ్ ఇల్లు. ఇంత ముందు 2020లా ఫస్ట్ టైం ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసింది. ఆయన ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ఇంట్లో పోయినారు, అక్కడ కూడా నీళ్ళు వచ్చేసింది, మొత్తం సామాన్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఎవరు ఏం చేయలేదు, అప్పుడు కూడా నీళ్ళు ఎవరు తీయలేదు. మళ్ళా ఈ సంవత్సరం ముందు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఆయన ఇల్లు మళ్ళా నీళ్ళు వస్తుంది అని ఆయన ఆలోచన అని చూస్తే ఆయన ఏమో ఆలోచన చేస్తే ఎప్పుడైనా పనుకొని నిద్ర వస్తలేదని చెప్పినాడు ఆయన. కానీ అట్లనే ఆయన హార్ట్ అటాక్ అయి చచ్చిపోయినారు. జహాంగీర్ గారు పోలీస్ వాళ్ళకి ఒక్క కొడుకుకి కూడా పెళ్లి కాలేదు, ఒక్క బిడ్డకి కూడా పెళ్లి కాలేదు, ఏం కాలేదు, ఆయన చచ్చిపోయినాడు. తర్వాత ఇట్లనే మన సలీం భాయ్ ఉన్నాడు, అట్లనే ఆయన కూడా చాలా బాధపడినారు నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత. ఇప్పుడు నీళ్ళు వస్తుందంటే అదే ఆలోచనలో ఆయన కూడా చచ్చిపోయినాడు. అట్లనే మన కాసిం ఉన్నాడు, ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నాడు, పేదవాడు ఉన్నారు, ఒక ఇల్లు ఇక్కడ కట్టినాడు, అది వడ్డీతోని కర్జా లేకే అప్పు తీసుకొని ఆయన ఇల్లు కట్టినాడు. ఆయన ఫాదర్ అంటున్నాడు ఇల్లు ఖాళీ చేసి మళ్ళా వేరే ఇంట్లో పోయినాడు, కిరాయా కడుతున్నాడు, నా కొడుకు ఎంత బాధపడుతున్నాడు. అదే బాధలో ఆయన కూడా
హార్ట్ అటాక్లో చచ్చిపోయినాడు. అతని తల్లి కూడా చచ్చిపోయినాడు. అతని తల్లి కూడా చచ్చిపోయింది. అట్లనే నీళ్ళు చూడడానికి ఒక అబ్బాయి కష్టిలా పోయినాడు. అతనికి ఈత రాదు, స్విమ్మింగ్ రాదు. అట్లనే సాదిక్ అని పేరు, ఆయన కూడా అట్లనే చచ్చిపోయినాడు. ఎవరు ఏం చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. సమీవుల్లాబాయ్ వాలిదా, సమీవుల్లాబాయ్ తల్లి ఏమో ఇట్లనే చచ్చిపోయినది. ఇట్లనే మున్నాబాయ్ కూడా ఒక్కనే ఉన్నాడు. నీళ్ళ ఎప్పటి వరకు ఇట్లనే చేయాలి, నీళ్ళు చూసానికి పోయినాడు, అట్లనే కూడా చచ్చిపోయినాడు. ఇంతగా ముందు ఏమో బేకరీ పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకోనికి వచ్చిన బేకరీ వాళ్ళు షాహిద్ నగర్లో ఉన్నది. వాళ్ళు ముగ్గురు ఇల్లు చూసుకునేకి ఇక్కడ వచ్చినారు. వాళ్ళు కూడా నీళ్ళ పడినారు, చచ్చిపోయినారు. ఇట్లనే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? అందరూ ఇట్లనే చచ్చిపోవాలా? మేము ఇక్కడ ఎవరు చేస్తలేరు, ఎవరు బాధతో ఉన్నారు? జర ఆలోచించండి. ఇట్లనే మేము కేసీఆర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కేటీఆర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఉస్మాన్ నగర్లో సేఫ్టీలో ఎవరు వస్తలేరు, ఏం పని చేస్తలేరు. చాలా సంవత్సరము తిరుగుతున్నారు, అందరు చోటిలా తిరుగుతున్నారు, కానీ ఎవరు ఏం చేస్తలేరు. జిలాస ఇట్లనే చెప్తున్నారు, చేద్దామండి, ఎవరు తప్ప ఎట్లైనా చేద్దామండి చెప్తున్నారు. కానీ వెనకాల వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లనే నీళ్ళు ఆపేస్తున్నారు, చెప్పినారు. వెనకాల వాళ్ళకి వెనక ఉన్న వాళ్ళకి ఏం బాధ లేదు. ఇప్పుడైతే పైప్ లైన్ వేసిస్తున్నారు. మొన్న కూడా పని చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి సాయంత్రం ఆపేస్తున్నారు. ఎందుకు ఆపుతున్నారు, ఎవరు చేస్తున్నారు? ఇట్లా జరా మీతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇది ఏమన్నా చెప్పండి పని. बंजारा हिल्स पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते एक खातून को मुबैना तौर पर धमकियां देने और इस्मत रेजी के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में लिया है। मुतासिरा खातून का कहना है कि बंजारा हिल्स रोड नंबर पर वाक़े एक मॉल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले एस चिन्नमैया से उसकी दोस्ती थी और दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। पुलिस का कहना है कि चिन्नमैया किसी काम से खातून के कमरे में गया और 4 अगस्त को उसके साथ ज्यादती की और उसने खातून को इस बात की इतला किसी को भी देने से मना करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। मुतासिरा खातून ने अपने दोस्त और वालिदैन को इससे आगाह किया, जिसके बाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के इलाके अप्परपल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर और उसके मालिक पर हमला करने का वाक़या पेश आया है। टैक्सी ड्राइवर पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। इतलात के मुताबिक कैब ड्राइवर की शिनाख्त पुराने शहर के रहने वाले फैसल के तौर पर हुई है। बताया गया है कि हफ्ते की रात 11 बजे अप्परपल्ली के रहने वाले विवेक रेड्डी नामी शख्स ने कैब बुक करवाई थी। ताहम फैसल के 15 मिनट ताखिर से पहुंचने पर वो गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने फैसल के साथ बहस व तकरार की, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर कैब ड्राइवर पर हमला भी कर दिया। विवेक रेड्डी और उसके साथियों की जानिब से मारपीट की इतला मिलने पर कैब मालिक भी वहां पर पहुंच गया। ताहम इन बदमाशों ने कैब मालिक पर भी हमला कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हमले में जख्मी दोनों अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस एडिशनल कमिश्नर DS चौहान ने बीबी का अलावा पहुंचकर हाजिरी दी और ढट्टी पेश की। बादजा उन्होंने जिम्मेदारान और हुकाम से बातचीत करते हुए तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के इनेकाद से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। 10 मुहर्रम को बीबी के अलम का जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत भी जारी की है। बादजा DS चौहान ने मीडिया के नुमाइंदों को महकमा पुलिस और दीगर महकमा जात की जानिब से किए गए इक़दामात की तफसील बताई। उन्होंने शहर की आवाम से इस जुलूस के मौके पर अमन की बरकरारी की अपील की और कहा कि अगर शहरियान एक दूसरे से इख्तलाफात रखेंगे तो ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन होगी, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन सभी के हैं। उन्होंने कल होने वाले जुलूस के लिए भरपूर ताउन करने की आवाम से ख्वाहिश भी की है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा मीटिंग में तय किया गया था, मीटिंग में जैसे बड़े लोगों ने मशवरे दिए थे, जो मशाइकीन हैं, उलेमा हैं, बाकी लोगों के जो अंजुमन के लोग हैं, उनके मशवरे के हिसाब से जो भी बंदोबस्त थे, चाहे वो ट्रैफिक का अरेंजमेंट हो, चाहे वो पार्किंग का हो, ख़ास तौर से ख़वातीनों की हिफाजत के लिहाज से भी तकरीबन सभी बंदोबस्त मुकम्मल किए जा चुके हैं। हमारे CP साहब ने भी ख़ास तौर पर इसके बाद में एक मीटिंग करके और जो भी मशवरे दिए गए थे, जो भी जो रिक्वेस्ट की गई थी, उस सभी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मुकम्मल इंतज़ाम करने की हिदायत दे दी गई है। और ख़ास तौर से जैसा हम सबको पता है कि 10 मुहर्रम का जो मातमी जुलूस होता है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी के मद्देनज़र आज आके हमने पूरे एहतराम अदब के साथ में, या बीबी के अलावा में मैं आया, हमारे साथ में बाकी अफसरान हैं, आप लोग हैं, और अपना अदब पेश करने के बाद में
फिर हम थोड़े से इंतजाम देख रहे हैं कि कल किस तरीके से पूरी शान और अदब के साथ में, एहतराम के साथ में आलम की यहाँ से निकासी होगी। उस वक्त में इस बार जो एक ख़ास तौर से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि दोनों तरफ नेट लगा के, और जिससे कि मातमी जो अंजुमन है या जो लोग मातम कर रहे हैं उनको भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो और आलम की शान में भी कोई कमी ना आने पाए। तो बीच से लेके उसको हाथी पे सवारी कराने के उसके बाद में पूरे जो रूट है तकरीबन 7 किलोमीटर का रूट उसको पूरा देख लिया गया है। जहाँ भी छोटी मोटी कमियां हैं वो मुकम्मल करा के पूरे शान और अदब के साथ में वो जुलूस निकाला जाएगा। और आप सभी को पता है कि हम सभी लोग मुहर्रम के मातम में शरीक होते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे मैं सभी से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आपस में किसी किस्म की कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ये इमाम हुसैन साहब की शान में गुस्ताखी होगी और वो कोई भी हैदराबादी भी कबूल नहीं कर सकता। और मैं इमाम हुसैन साहब सबके हैं। मैं सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर कल के इस जुलूस में आप अपना ताउन दें और पूरी तरीके से हम लोग आपके साथ रहेंगे। और जैसे इंशाअल्लाह हर बार जुलूस निकलता है उसी शान व अदब के साथ में जुलूस निकलेगा। मैं बता रहा था, जब पहली चीज़ आप देखिए कि इस बार जो एक हम लोगों को मशवरा दिया गया था कि दोनों तरफ हम लोग नेट लगाएं जिससे कि आलम को निकालने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात, पूरे रूट के दौरान हमने हर इम्पॉर्टेंट जंक्शन पर एक इस बार ख़ास अफसर को की तैनाती की है और उन सभी अफसरान की रूट के देखने के बाद में मीटिंग एक तामीर की गई है। वो उसमें मीटिंग में जो पूरे उनको हिदायत दी जाएंगी ताकि जो नए अफसरान आए हैं उनको भी इसके बारे में पूरी जो है हिदायत दी जा सके। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट जंक्शंस जैसे हुए जहाँ पे जैसे मीर चौक से आपको पता है पुरानी हवेली के बीच के जंक्शन में बहुत सारी अंजुमन वहाँ आती हैं, तो वहाँ पे ख़ास इंतज़ाम किए जाएंगे। इसी तरीके से GHMC के मुताल्लिक से उनसे करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट से मातमदारों को किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो, उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो, उसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। और जितनी भी ख़वातीन हैं ख़ास तौर से जो इस बार हमको हिदायत दी गई थी या जो मशवरे दिए गए थे उनकी हिफाजत के लिए भी ख़ास तौर से शी टीम और क्राइम टीम की तैनाती की गई है। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के दमरचरला में मूसा नदी के किनारे जलपरी दिखाई देने का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने एक हंगामा मचाया हुआ है। सोशल मीडिया सारिफीन वीडियो की सदाकत की तस्दीक किए बिना इसको बड़ी तेजी से शेयर करते जा रहे हैं। वीडियो के तेजी से वायरल होने पर जब हक़ाइक़ की जांच की गई तो पता चला कि ये वीडियो फेक है। JJPD प्रोडक्शन नामी एक यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो को इंटरटेनमेंट के लिए शेयर किया था। ताहम नेटिजन्स और व्हाट्सएप सारिफीन ने इस जाली वीडियो को सच समझकर तेजी से इसे शेयर कर दिया, जबकि मूसा नदी में जलपरी यानी मरमेड पाया जाने वाला ये वीडियो फेक है। जिले मुलुगु के ताड़वाई मंडल में एक रेत ले जाने वाली लॉरी हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक लॉरी का ड्राइवर तेज रफ्तारी के सबब कंट्रोल खो बैठा, जिसके सबब ये लॉरी एक नदी में जा गिरी। वाज़ेह की रियासत में जारी मुसलसल बारिश से कई मकामात पर सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं और ये खस्ता सड़कें हादसात का सबब बन रही है। ईटूरू नागारम से रेत लेकर पसरा जाने वाली लॉरी हादसे का शिकार हो गई। इत्तला मिलने पर मुताल्लिका हुकाम ने वहां पहुंचकर जरूरी इक़दाम किए। कंचनबाग पुलिस हदूद के इलाके हाफिज बाबा नगर में वाक़ कपड़ों की एक दुकान में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया है। इतलात के मुताबिक उमर होटल के करीब वाक़ साज डिजाइनर में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगी है। मुकामी अफराद का कहना है कि बर्क़ी तार टूट जाने से ये वाक़या पेश आया। आग लगने की इतला मुकामी अफराद की जानिब से महकमा फायर इंजन को दी गई। फायर इंजन अमले ने फौरी वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि आतिशज़दगी के इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और दुकान में मौजूद तमाम तर मलबूसात जलकर खाकसर हो गए हैं। मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब ने उस मुकाम पर पहुंचकर मुआयना किया और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी करते हुए हर मुमकिन मदद की फराहमी का तयखुन दिया है। बताया गया है कि महकमा बर्क़ी की लापरवाही के सबब आतिशज़दी का ये वाक़या पेश आया है। आज हाफिज बाबा नगर जो उमर होटल से जो अंदर एक रोड आती है, जो बड़ी मार्केट है, यहाँ पर सास डिज़ाइनर बोल के एक बहुत बड़ी कपड़े की शॉप थी जो बाबा नगर की, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ पर कपड़े का कारोबार होता था। आज सुबह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब को ये इत्तला मिली कि बाबा नगर में ये शॉप पे जो है ना शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से
यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ फर्स्ट। एक 11 kV का वायर है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। पब्लिक से ये इत्तला मिल रही है कि वो वायर टूटने के बाद में एक ऑटो पे गिरा, उसके बाद में जो है ना इस शॉप के बोर्ड को आंच लगी। और जैसे ही मुझे भी इत्तला मिली, ये वाक़या जो है ना 7:30 को हुआ और हमने 15-20 मिनट में मैं भी यहाँ पर आया, आके फायर स्टेशन के गाड़ियों को और GHMC के DRF की टीम को, सारे अमला को यहाँ पर बुलाकर हमने बहुत मेहनत से आग को तो बुझा लिया। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि ये बाबा नगर की अच्छी बड़ी दुकान थी। ये कहना कि शायद यहाँ पर लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये शॉप के जो भी ओनर है, मोहम्मद बोल के जो शॉप ओनर है, उन्हें अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने जो जायज़ा लिया है, ये एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी और लाखों तो नहीं बोल सकते, क़रीब जो है ना अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि करोड़ों में हुआ होगा नुकसान। तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पर बुलाया है कि ये वाक़े की तहक़ीक़ात करने के लिए, क्योंकि जो मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 11 kV का वायर पहले टूटा। वायर टूटने के बाद में एक ऑटो पे गिरा, ऑटो पे गिरने के बाद एक बोर्ड को आंच लगी। बोर्ड को आंच लगने के बाद में हल्लू हल्लू जैसा पब्लिक आई, कोशिश करी पब्लिक भी बुझाने के लिए, लेकिन आग धीरे धीरे इतनी स्पीड हो गई कि शॉप को जितना टोटल उसके अंदर जितना माल है उसमें से पूरा टोटली 1% भी माल यहाँ पर नहीं बचा। वो बेचारों को अल्लाह खैर करे, उनको हिम्मत दे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे, क्योंकि जितना भी माल था टोटली नुकसान हो चुका है। और हम इंशाल्लाह मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी ये कहूँगा, जाके साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा और हम जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, मंडल से हो या डिपार्टमेंट से हो, इनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम इनको क्या ताउन दिला सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं अब वक्तिया हमने यहाँ पर जितनी भी आग है उसको काबू पा लिया है। अब फिलवक्त आग पूरी बुझ है। पूरी दुकान जल गए, 2 भी दुकाना जल गए, पूरे कंप्लीट जल गए दुकाना 2 भी। और वो वायर गिरा, वो वायर बहुत हेवी वायर था, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है पूरा। ये 11 kV का वायर है और यहाँ पे स्पार्क हो रहा था, वो वायर यहाँ पे बोर्ड पे गिर के कंप्लीट मेरे 2 भी दुकाना बिल्कुल पूरे को जल गए। कितने का नुकसान हुआ इसमें? नुकसान का भी पूरा टोटल लॉस है। अब कितना हुआ क्या है, पूरी दुकान ही जल गई, जो भी था सब कुछ भी नहीं बचा दुकान के अंदर। जी नहीं, कोई भी पार्टनर नहीं। ये लोग भाइयाँ हैं, हम लोग 6 भाई है। 6 भाई है। ये लोग जो है ना पूरे 6 भाई के दुकान है, भाई मिल के अपने तौर पे चला लेते दुकान। मगर जो है ना ये दुकान पे ख़ास कर इनो बैठते थे। ये इनकी दुकान थी। बाबा नगर में ऐसे इनके और एक 2 दुकान हैं। यहाँ पे 3 दुकानें हैं इनके। एक हबीब किड्स वेयर बोल के है जो बच्चों की है, और एक जो है ना साथ डिज़ाइनर बोल के बड़ी है, और इमरान टेक्सटाइल, बरल 2-4 दुकान है इनके यहाँ पर। हर भाई अलग अलग अपने शॉप चलाते थे। ये भाई की शॉप ये थी और टोटली बिल्कुल ही मैं बता सकता हूँ कि करोड़ों में 100 रुपये का भी शायद इनकी दुकान में सामान नहीं बचा, टोटली नुकसान हो गया। अब हम इनके डिपार्टमेंट से भी इंक्वायरी करेंगे कि किस वजह से हुआ, कैसा हुआ, वायर गिरने की वजह क्या है, कैसा हुआ, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही थी या क्या था, ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। इसको कंफर्म करेंगे, बात करके आपको पूरा रिपोर्ट देंगे। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद में मजीद 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जताया है। इतवार की सुबह से ही शहर में वक्फे से बारिश होते रही। इतवार की दोपहर और शाम के औकात में भी कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश हुई। पीर की सुबह से भी शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात ने शहर में आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के सबब उपल इलाके में सबसे ज्यादा 15.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सरूर नगर में 14 मिलीमीटर और हिमायत नगर में 13.9 मिलीमीटर बारिश हुई। 2 दिनों से जारी बारिश के सबब शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत में कमी आई है। रियासत के कई अजला जैसे नलगुंडा, आदिलाबाद, मुलुगु, कोमरम भीम, आसिफाबाद, करीमनगर, भद्रादरी, कोत्तागुड़म व दीगर में इतवार को शदीद बारिश हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 8 और 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि ऑरेंज अलर्ट बहुत ज्यादा बारिश की निशानदही करता है और रेड अलर्ट इंतहाई शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मगरिबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है।
बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में तिलाई तमगा जीत लिया है। पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को शिकस्त देकर अपने करियर का पहला विमेन सिंगल CWG गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने 15-21 और 13-21 से जीत हासिल की, जिसके बाद हिंदुस्तान मेडल टेबल में चौथे मुकाम पर आ गया। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु का ये पहला तिलाई तमगा है। सिंधु ने इससे कबल 2014 में कांसे का तमगा जीता था और 2018 में चांदी का तमगा जीता था। पीवी सिंधु के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही हिंदुस्तान ने 2022 के दौलत मुश्तरिका खेलों में कुल 56 तमगे जीत लिए हैं, जिसमें 19 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 कांसे के तमगे शामिल हैं। आज हुए फाइनल मुकाबले में कनाडा की खिलाड़ी ली ने अच्छा खाता खोला, ताहम कुछ गलतियों के सबब पीवी सिंधु को बरतरी हासिल हुई और सिंधु ने शानदार कामयाबी हासिल की। हल्का असम्बली मुनुगुड़ा के रुकने असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने आज इस्तीफा दे दिया है। राजगोपाल रेड्डी ने असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्पीकर ने फौरी तौर पर कबूल कर लिया। मुस्तफी होने के बाद राजगोपाल रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर यादगार शहीदा पर खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के गद्दारों से घिरे हुए हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि आवाम का फैसला वजीर आला केसीआर की आंखें खोल देगा। कांग्रेस के साबिक रुकने असम्बली ने बताया कि उनके हलके में 3.5 साल से फंड्स जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से हलके में तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए जा सके। आज़ाद हिंदुस्तान के डायमंड फेस्टिवल्स के प्रोग्राम का आज से आगाज हुआ है। सीएम केसीआर ने HICC में कौमी परचम लहराकर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वुज़रा, MLAs, MLCs, MPs, जिला परिषद चेयरमैन, ZPTCs, MPTCs ने इस मौके पर शिरकत की। यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने की खुशी में मनाए जा रहे प्रोग्राम्स के हिस्से के तौर पर आज वीना फनकारों की जानिब से मुख्तलिफ मुजाहरों का एहतमाम किया गया। एक लेज़र शो भी मुनक़िद हुआ। वज्र उत्सवता कमेटी के चेयरमैन केशव राव ने इफ्तिताही तकरीर भी पेश की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी व दीगर हुकाम ने इस मौके पर इंतजामात का मुआयना किया। सोमेश कुमार के मुताबिक जद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों की याद में क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस और फ्यूजन डांस प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। सोमेश कुमार ने बताया कि आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कायम किया गया है और HICC की जानिब जाने वाली तमाम सड़कों को कौमी परचम से सजा दिया गया है। कांग्रेस CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज एक इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में बारिश से होने वाले नुकसानात और आवाम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना नहीं लगाया गया। उनका कहना है कि आवाम का ज्यादा नुकसान हुकूमत की गफलत से होता है और पिछली हुकूमतें फौरी एक्शन लिया करती थी। CLP लीडर ने बताया कि 9 से 15 तारीख तक हर जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा निकाली जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने यह भी बताया कि कांग्रेस लीडर सैलाबी इलाकों और कैडम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे।